A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new type of the questions related to the chapter number 1 and chapter number 2 of class 12th accountancy. And the chapter number 1 is accounting as well as the financial statement of not-for-profit organization. And the chapter number 2 is accounting for partnership firm fundamental. As you know very well, in the last few videos we already discussed a lots of the board questions, important board questions and the important topic related to the class 12th accountancy, and all the topics will be covered chapter wise. So in today's video we discuss the practical problems, the important board questions related to the NPO, that is a not-for-profit organization, and thereafter we will discuss the practical problem from the chapter number 2, that is an accounting for partnership firm. So without creating any delay, let's be discussed and solve the first board question which already asked in the examination 2017, and the question is very clear. Show how would you deal with the following item while preparing the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as that date. It means with the help of the given information, you have to show the following information in the required statement. That is, and you know very well, when we are talking about the financial statement of NPO, so there are basically three important account covered under it. The first one is the receipts and payment account, number two income and expenditure account, and number three is a balance sheet. So the information is very clear in this question. Prepaid expense on this question is already asked in the CBSE 2017. Prepaid expense on 31st March 2017 is rupees 15,000, as well as the prepaid expense on 31st March 2000, this is 16 and this will be a 17 is 14,000. And next information, outstanding expense on 31st March 2016 and outstanding expense on 31st March 2017, and the information is outstanding expense on 2016 will be a 23,000 and on the 2017 25,000, and the expense paid on 31st March 2017 is 1,65,000, and this information you will show the effect on the income and expenditure account. The question is show the effect on income and expenditure account and balance sheet which are prepared as at 31st March 2017. So this will be the information given in the paper. So how you will solve such type of the question, let's we discuss about it. Okay, so you can see that this is an information. Basically you know very well, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट एंड एक तरीका बताया गया था कि कैसे आप इन सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ इफेक्ट करना है, आपको इनकम एक्सपेंस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में दिखाओगे। तो उसके लिए आपको एक वर्किंग नोट मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था। वर्किंग नोट वो क्लियरली था रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। दैट इज फर्स्टली आप एक्सपेंस पेड लोगे। सबसे पहले आप क्या लोगे? एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल आपने कितना एक्सपेंस पे किया, and the amount of the expense is 1,65,000, and this expense you will note down prepaid as beginning and prepaid as end. Prepaid as end को क्या करोगे? माइनस, और prepaid as beginning को क्या करोगे? प्लस।
आउटस्टैंडिंग बिगनिंग को क्या करोगे माइनस, और आउटस्टैंडिंग एट एंड को क्या करोगे प्लस, आपको पता ही है। सो उसमें आप क्या करोगे, प्रीपेड एट एंड माइनस प्रीपेड एट बिगनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस and outstanding at beginning minus, and the value is prepaid as end is 14,000, prepaid as beginning is 15,000, and outstanding as beginning is 23,000, and outstanding at end is 25,000. So this value will be known as an amount debited to income and expenditure account. Amount debited to income and expenditure account, and this value will be known as 1,68,000 according to my calculation. So आपने वर्किंग नोट किया। अब आपको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसके लिए यू नो वेरी वेल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, कब बनेगा, 31 मार्च 2017। तो उसमें आप यू नो वेरी वेल एक्सपेंस को कहां शो करोगे, डेबिट साइड। जो भी एक्सपेंस है, या एक्सपेंस का नाम नहीं दिया, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक्सपेंस का नाम भी गिवन हो। सो एक्सपेंस का नाम आप गिवन करोगे, दैट इज एन कोई भी एक्सपेंस हो, सैलरी हो, वेजेस हो, वॉट एवर हो, दैट इज इन 1,68,000। Apart from them, thereafter you will prepare the balance sheet. आप क्या प्रिपेयर करोगे, बैलेंस शीट, and you know very well in the balance sheet when you prepared on 31st March 2017. So इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये बैलेंस शीट कब बन रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर, and you when you prepare the balance sheet at the end of the year, in this situation the two closing balances, prepaid and outstanding, will be shown in the closing balance sheet. So closing prepaid is prepaid expense at end, से prepaid expense at end कितना है 14,000 assets में शो करोगे, and outstanding at end आप liability में शो करोगे, that is in 25,000. ओके, यानी सिर्फ एंड बैलेंस को ही कंसीडर करोगे, बाकी किसी वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, किसका, ऑफ फ्रेंड्स क्लब। और कब बनाना है, दैट इज इन 31st March 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 को बनाना है। एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। द ओपनिंग बैलेंस इज 50,400, डोनेशन इज 44,000, sale of old newspaper is 2,000, subscription, total subscription is 66,600, whereas of 17-18 is 1,600, 18-19 is 60,000, and 19-20 will be a 5,000, and entrance fees rupees 1,20,000. furniture जिससे आपने परचेस किया था on 1st December 2018, that is a 1,20,000. apart from this, salary is 1 lakh, secretary honorarium that is in 4,000, books 44,000, and the closing balance is 55,000. Additional information are as follows, that is an opening information, that is on 1st April 2018 the club had the following balances of assets and liabilities: furniture 1 lakh, subscription in area 2,000, outstanding salary 6,000, and the club had 75 members, each paying annual subscription of 1,000, and depreciation charge on furniture is 10%. So it is very simple question. पहले हम लोग इनकम साइड पे डिस्कस कर लेते हैं। डोनेशन कैसी रिसिप्ट होती है,
जब क्वेश्चन में कोई क्लियर नहीं होता है, डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल डोनेशन एंड द डोनेशन इज 44,000. नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी आपकी रेवेन्यू इनकम है. सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, that is an 2,000. Next is entrance. Next is a subscription. Subscription में clearly लिखा हुआ है और इसको लेकर आपको ज्यादा ट्रबल करने की जरूरत नहीं है. The total member is 75 और हर मेंबर कितना दे रहा है? हर मेंबर आपको दे रहा है 1,000 रुपीज. सो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला 75,000. क्लियर? लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000. सो 15,000 इज अ प्लस, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एंड इन. इट मींस आपको सिंपल सा देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको? 60,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था? 75. सो 15,000 इज एन आउटस्टैंडिंग एंड इन. नेक्स्ट इज, it is a very clear in this question, that is an entrance fees 1,20,000. Next, let's we discuss about the payment side. The first is salary, to salary, and the salary is, total salary is 1 lakh and the salary outstanding is 6,000. So 1 lakh उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है. अगर इंड का होता तो क्या कर देते? ऐड कर देते. बट ये सैलरी बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग है 6,000, उसको क्या करेंगे? माइनस. तो ये हो जाएगा 94,000. नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये है 4,000, ये भी आपका एक्सपेंस है. सेक्रेटरी ऑनरेरियम ये है आपका 4,000. नेक्स्ट है आपका बुक्स. बुक्स पे क्या लगता है? डेप्रिशिएशन, लेकिन इसमें कुछ बोला नहीं गया है. और फर्नीचर पे आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, दैट इज एन डेप्रिशिएशन ऑन मशीन. डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर. अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि पहले से आपके पास फर्नीचर इज 1 लाख, तो उस पे 1 लाख पे आप टोटल डेप्रिशिएशन बियर करोगे 10% से, दैट इज एन 10,000. बट आपने एडिशनल डेप्रिशिएशन परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000 और 1,20,000 का कितना परसेंट क्वेश्चन में बोला गया है? 10%. और कब आपने खरीदा है? आपने खरीदा है 1 दिसंबर. सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर 4 months. So the depreciation for additional furniture is 1,20,000 is 12,000. 12,000 is a 4,000. So total depreciation on furniture is 14,000. Now क्वेश्चन इज कंप्लीटेड और कुछ बचा नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे? एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम लोग ऐड और लेस करेंगे. ऐड और लेस करने पे वी फाइंड आउट द क्रेडिट टोटल इज 2,41,000. डेबिट में भी टोटल करिए 2,41,000 और उसके बाद आप सरप्लस निकालोगे. सो इन दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज 1,29,000 एंड विच इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, सो ये है सॉल्यूशन आपका. ये क्वेश्चन जो है वो आया है सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 के बोर्ड एग्जाम में. सैंपल पेपर का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है. ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था. सो आज हमने इस वीडियोस के थ्रू आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया. बट बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये चीज भी है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला है और कुछ भी नहीं. सो अदर्स फैक्टर्स में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे. अदर्स फैक्टर्स मतलब जैसे कि अगर हम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर्स फैक्टर लाइक अ component related to the opening balance sheet and component related to the closing balance sheet. सो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपीज में प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो.
Let's we move to the another type of the quotient, that is an accounting treatment of specific fund, and this quotient generally 3 to 4 marks in the examination. यानी एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है. And the information related to this topic, that is an accounting treatment of a specific fund, और इससे related एक क्वेश्चन है, that is an question will be asked in the CBSE 2018, and question is very clear about it. How you will deal with the following item while preparing the income and expenditure account and balance sheet as that date. So question is, show the effect on income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2018. So the effect on income and expenditure account and balance sheet which are prepared on 31st March 2018. So first of all, in this situation we take the lots of information like a price awarded rupees 30,000, price fund 2,40,000, donation for price received 43,200, 10% price fund investment as on 31st March 2017, that is in 2,40,000. Interest received on price fund investment is 16,200. So first of all, when we prepare the balance sheet as on 31st March 2018, in this situation, firstly we write down the first information, that is in price fund. So the information given in this question, that is in price fund, is rupees 2,40,000. Price fund is rupees 2,40,000, and the donation received during the year, and you know very well donation received को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और तब तक इसको बाहर नहीं लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा. सो डोनेशन अगर रिसीव्ड होता है अगेंस्ट प्राइस फंड, सो उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड द अमाउंट इज 43,200. एंड नाउ वी विल ऐड द इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन प्राइस fund investment, and the value is price fund investment is 24,000, and the price fund investment given in the question is 10% price fund investment, and the value is 2,40,000. And the next information which are given in this question, which are given outside the question, is इंटरेस्ट रिसीव इज 16,200. इंटरेस्ट आपको मिला 16 या 200 रुपए, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर अबाउट कि आपका इन्वेस्ट हुआ था कितना, 2,40,000 रुपए. उस पर आपको 10% की रेट से क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था कितना, 2,40,000 का 10% के अकॉर्डिंग आपको कितना मिलना चाहिए था, 24,000. बट आपको इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, ये कह सकते हो टोटल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड आपको इतना होना चाहिए, बट आपको अभी तक केवल कितना मिला है, 16,200 रुपए मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो नाउ द रिमेनिंग वैल्यू इज 7,800 इज एन एक्रूड इंटरेस्ट. ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि इफ देयर इज एन एनी काइंड ऑफ द एक्रूड इंटरेस्ट, सो इट विल बी एडेड इन द एंड शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. Accrued interest on investment, and the value is 7,800. It is very clear in this question. And price fund interest ऐड हो गया, लेस होगा प्राइस अवॉर्डेड, कितना आपने प्राइस अवॉर्ड किया, and the value is 30,000. So after adding and deducting
प्राइस फंड प्लस डोनेशन रिसीव प्लस इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लेस प्राइस अवॉर्डेड एट द क्लोजिंग वैल्यू इज 2,77,200. So this is a solution and you can see that how we will show the given effect in the balance sheet of the related to the specific fund. And if we are talking about the income and expenditure account, so in this situation it is very clear इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तभी चीजें शो करते हैं, बात ध्यान समझिएगा, तभी हम शो करेंगे जब कोई भी चीजें आपका जो प्राइस फंड है वो कम हो और आपका जो प्राइस अवॉर्डेड हो वो ज्यादा हो, उस सिचुएशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करेंगे. बट इन दिस सिचुएशन आपको एकदम याद रखना है, इस सिचुएशन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में ही सारा का सारा इफेक्ट पड़ेगा. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन. एक और क्वेश्चन है जो 2017 में रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द एनपीओ पूछा जाता है वो जनरली. तो कुछ क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रख लो, जैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं उस पर क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, और एक आता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स. इस तरह के क्वेश्चन आप लोग स्पेसिफिकली डिस्कस कर लो और उसको रिवाइज कर लो, बिकॉज सच काइंड ऑफ द क्वेश्चन आर बेनिफिशियल फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, सो okay, so let's we move to the next chapter of your syllabus, the chapter number 2, that is an accounting for partnership firm fundamental. Accounting for partnership firm fundamental. In this chapter, if we are talking about the numerical questions, so in this chapter question asked in the various types, in the various way. मतलब इस चैप्टर से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी एग्जैक्टली नहीं बोल सकता किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. And the nature of the question which are related in this chapter, अगर हम लोग बात करें कि किस तरह के नेचर्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, तो देखिए सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. दूसरा इसमें टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में यू नो वेरी वेल फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, और दूसरा हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं. थर्ड आपका इस टॉपिक में आता है डेट इज एन पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट. जैसे कुछ एरर्स होते हैं, एरर को रेक्टिफाई करना होता है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, इस तरह के एरर्स होते हैं इस चैप्टर्स में. और इस चैप्टर्स में आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. और नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. So in this chapter, if we are talking about the questions, sequence of the question, so you can see that the second chapter of your syllabus, that is in accounting for partnership firm, say a lots of the question were asked. So without creating any delay, let's we discuss the few of the important questions related to the chapter number 2, which already asked in your board examination. So the first question of this topic, let's we discuss about it. The first question of this topic is past adjustments. ये क्वेश्चन आया है आपका CBSE सैंपल पेपर 2020,
जिसे सीबीएसई ने इशू किया है 9 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था रोहित, रमन एंड रैना आर पार्टनर इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1st April 2019 stood as 2 lakh, 1,20,000, 1,60,000 respectively. And it is very clear each partner withdraw 15,000 during the financial year 2019 and 20. So there are 3 partners: Rohit, Raman and Rana. Okay, and it is very clear the capital on 1st April 2019 and the value of the capital is 2 lakh, 1,20,000, 160. The next information is interest on capital. As per the provision, interest on capital of the partner was to be 5% per annum, drawing 4% per annum, profit and loss 541, and the net profit is 72,000. And the mistake is that the net profit of rupees 72,000 for the year ended 31st March 2020 was divided equally among the partner without providing for the term of deed. यानी डीड को फॉलो नहीं किया गया और प्रॉफिट दे दिया गया। तो इसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? इस सिचुएशन में सबसे पहले हम बनाते हैं रॉन्ग सिचुएशन, यानी हमें करना क्या था पहले हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। करना क्या क्या था हमको? सर हमें रोहित, रैना और रमन को पहले हम फॉर्मेट आपको बताते हैं। इस तरह का फॉर्मेट हम लोग फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स के नाम एंड देयर आफ्टर टोटल। सबसे पहले हमें क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से देना था हमें? 5%। सो 2 लाख का 5% इज 10,000, 120 का 5% 60,000, 6,000 एंड 160 का 8,000। ये तीनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए प्लस होता है, बट फर्म के लिए क्या होता है? लॉस। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तीनों पार्टनर ने 15,000 रुपीज विदड्रॉ किया था। तो अगर हर पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालें तो 15,000 एट द रेट ऑफ 4% फॉर 6 मंथ, बिकॉज जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता है तो हम 6 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द 6 मंथ इज, इट इज वेरी क्लियर, दैट इज 300, 300, 300 फॉर ईच पार्टनर। और ये तीनों के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो टोटल के लिए क्या होगा? प्रॉफिट्स। नाउ नंबर सी कि जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें हमें किस रेशियो में बांटना है? 5:4:1। तो प्रॉफिट कितना बचेगा हमारा? प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इज 72,000, जिसमें से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्ट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का 900 ऐड हो जाएगा। सो द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 48,900 और इस पैसे को हम लोग क्या करेंगे? 5:4:1 में रोहित, रमन एंड रैना में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड द वैल्यू इज 24,450 एंड 19,560 एंड 4,890। सो द टोटल इज 48,900। अब आप क्या करो? इन तीनों को ऐड करो कि आर को कितना मिलना था? आर को टोटल मिलना चाहिए था 34,150। रमन को कितना मिलना चाहिए था? 25,260। ये कैसे आ रहा है? 6,000 में 300 माइनस, फिर इतना प्लस, 8,000 में 300 माइनस प्लस 4,890, दैट इज 12,590। इतना इनको मिलना चाहिए था। दिस इज एन करेक्ट सिचुएशन। ओके, ये तो हमने क्या किया है? सही किया। अब हम क्या करेंगे? रॉन्ग कैलकुलेशन को फाइंड आउट करेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे लास्ट में कि हमसे गलती क्या हुई, रॉन्ग क्या हुआ। रॉन्गली ये हुआ कि जो भी प्रॉफिट हमारे पास था दैट इज 72,000, उसे हमने क्या किया? इक्वली बांट दिया।
wrong distribution of profit, and the profit is 72,000, जिसे हम 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, and the value is 24 and 24. So this is in total of A and this is in total of B. आप क्या करोगे, नेट निकालोगे, नेट इफेक्ट कितना पड़ा. So the net effect कैसे निकालते हैं, A minus B. For A is 10,150, for B 1260, for C 11,410. और अगर आप इस कंपेयर करोगे तो यहां देखो A is positive, B is negative. So B is greater than. यहाँ पे A ज्यादा है, B कम है, so it is in positive. यहाँ पर A ज्यादा है, B कम है, so यहाँ पे भी positive. So you can see that जो पॉजिटिव में होगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जो नेगेटिव में होगा उसकी कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे. So in this situation you know very well, we pass the adjustment entry. So the adjustment entry in this question, that is in Rohit's capital account debit, Raman's capital account debit to, sorry for that, इन दोनों क्रेडिट करेंगे, ठीक है, बिकॉज लिखा भी क्रेडिट. किसको डेबिट करेंगे, रैना's capital account debit to Rohit's capital to Raman's capital. लिखा भी है वहां क्रेडिट करना है, कितना, 10,150 इनको 1260, total is 11,410. So the rectification of the error and the rectification of the such problem are as follows. Okay, so please note down this solution in your copy properly. So in today's video we discussed the practical problem related to the NPO as well as the practical problem related to the accounting for partnership firm fundamental. Thank you, take care.